Everyone. Hi, this is Karan Singh from Achievers Academy, Gandhinagar. Welcome back to my channel. In today's lecture, we are going to start with the derivation of equation of motion by graphical method, right? You can see behind me, there are three graphical equations mentioned here. The first equation is basically V equals to U plus AT. That's the velocity time relation. Okay, V equals to U plus AT. That's the velocity time relation. Then S equals to UT plus 1/2 AT square. That's the position time relation. And the third equation, that is position and velocity relation. 2AS equals to V square minus U square. So these three equations we will be deriving, and I must tell you one thing. These three equations are very important for you people, because throughout the physics, okay, in 9th standard, these three equations are going to be with you in the next chapter. There is a very huge part of this three numericals is there, okay, present. And apart from that, in all the chapters except the sound chapter, all the chapters are having the numericals based on these equations. Okay, so first we will be starting with initially the velocity time relation. If you remember this formula, if you observe this formula is the formula of acceleration. If you rearrange it, V minus U, A equals to V minus U upon T. Okay, so let's see that how we can derive it. So first equation for velocity time relation. First equation is velocity time relation. Okay, this is our equation. I will be telling you what you need to do first. First, you need to draw this graph in your notebook, always on the topmost left corner. Okay, very clearly. In the exam, whenever it is asked, there is the marks also given for this graph. This is very important for you people. Okay, so how you need to draw the graph? Please let's see first. Okay, first you need to write down the heading, that's the equation for velocity time relation. Below that you can write the equation also. Okay, you can write the equation also here, V equals to U plus AT. Now let's see the graph. Okay, if you see the graph very clearly, you will find that this is a graph between velocity and time. Okay, the graph is between velocity and time. Fine, the time is in second, velocity is meter per second. This graph is basically going to be in all the three equations. So you need to understand the graph very clearly first. Okay, you need to be understanding it very clearly, because ये तीनों के तीनों derivation में आने वाला है. Okay, so what you see, you are taking time here and you are taking the velocity here. अब हम क्या करते हैं, हम OA, okay, हम OA को ले लेंगे इनिशियल वेलोसिटी. हमने U थोड़ा ऊपर लिया है. हमने क्या माना है, U 0 नहीं है. हमने ऐसा माना है इस इक्वेशन को ड्राइव करते वक्त कि U is not equal to 0, इसलिए हमने OA को हमने क्या लिया है, U. यहां पे U नहीं है, OA is U and OA will be equal to CD. कहीं पे CD भी इस्तेमाल किया तो आपको कंफ्यूज नहीं होना. क्यों? बिकॉज इट्स रेक्टेंगुलर फिगर. यू कैन सी द AO विल बी इक्वल टू CD. सो ये आपका U हो गया. देन EO, ओके, या फिर BC क्या होगा, V. BC क्या होगा, V. दैट इज द फाइनल वेलोसिटी. AO इज द इनिशियल वेलोसिटी. अब ये टाइम लिया हमने, OC टाइम है, तो हमने यहां से हमने स्टार्ट किया पॉइंट A से, इसलिए हमने OC के पैरेलल एक लाइन बनाया AD हम इसको टाइम एज्यूम कर रहे हैं. क्यों? हमने U को 0 नहीं माना, तो हमने थोड़े ऊपर से पॉइंट A से हमारा जो है हमने U स्टार्ट किया है. ओके, तो यहां पे हमारा टाइम ले लिया. क्लियर? सो AD और OC इक्वल है, और वो हमने क्या माना उसको T टाइम. ओके, AO हमारा और CD इक्वल, हमने U मान लिया, और हमारा EO की जगह पे BC भी लिख सकते हैं, जो हमारा क्या होगा, V. क्लियर? UV और T क्या हो गया, और 8B जो है हमारा एक्सेलरेशन ग्राफ है. ओके, नाउ दूसरा चीज, अब BD हमारा चेंज इन वेलोसिटी है. कैसे? BC फाइनल वेलोसिटी एंड CD इनिशियल वेलोसिटी. तो BC माइनस CD क्या देगा, BD. तो BD हमारा क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी. ये चीजें आपको याद रखना है. क्लियर? फाइन. आप इसको सॉल्व करने से पहले आपको एजम्पशन लिखना जरूरी है. ओके, आप एजम्पशन आपको लिखना है. जैसे यहां पे मैंने एक एजम्पशन लिखा है, आप देख सकते हैं. ओके, लेट AO इक्वल्स टू U, BC इक्वल्स टू V, OC इक्वल्स टू AD, OC इक्वल्स टू AD इक्वल्स टू T, ओके, एंड BD इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी. ओके, हमने इनको मान लिया अपने ग्राफ के हिसाब से, फ्रॉम द ग्राफ. ओके, सो हमने ये जो भी चीजें की यहां पे हमने वो लिखा है कि लेट ड्रॉ AD पैरेलल टू OC फ्रॉम ग्राफ. वी ऑब्जर्व दैट BC इक्वल्स टू BD प्लस CD इक्वल्स टू BD प्लस OA. ओके, तो ये चीजें हमारे ग्राफ से हमने लिखी है, आप देख सकते हो. यहाँ पे ग्राफ को अगर हम देखें तो हमारे पास BC इक्वल्स टू BD मैंने आपको बताया, BC
इक्वल्स टू आपके पास क्या है बी डी, ओके, BC इक्वल्स टू BD प्लस CD, ये पूरा BD और CD मिलके बनेगा। जैसा मैंने आपको बताया था कि चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, आपका BD क्या होगा, BC माइनस CD। तो वही यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। ओके, तो आपका फाइनल वेलोसिटी इन्होंने यहाँ पे ऐसे डिराइव किया है, आप देखिए यहाँ पे आपको ये गिवन है, उन्होंने वैल्यू पुट की है। ओके, तो BD क्या होगा, V माइनस U। ओके, BD विल बी V माइनस U। क्यों V माइनस U, चलो ग्राफ को हम देखते हैं। ओके, BD हमारा V माइनस U क्यों होगा, तो BD जो है हमारा, BD क्या है, चेंज इन वेलोसिटी है। ओके, BD इज व्हाट, चेंज इन वेलोसिटी। तो BD हमारा क्या होगा, BC माइनस CD। तो BC हमारा क्या हुआ, V, और CD हमारा क्या हुआ, U। तो V माइनस U, समझ आया। तो BD इक्वल्स टू V माइनस U यहां से आया। ओके, तो हमने लिखा फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ग्राफ के मुताबिक चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ओके, तो BD हमारा चेंज इन वेलोसिटी है, तो हम चेंज इन वेलोसिटी पर क्या रखेंगे, BD। हमने BD रख दिया और BD अपॉन AD। जैसे हमने पहले तो मैंने क्या बताया यहाँ पे आपको, AD और AD एंड आपका OC क्या है, इक्वल है। तो पहले AD रखो या OC रखो, दोनों चलेगा। आप AD भी रख सकते हैं और OC भी रख सकते हैं। क्लियर, तो आपका क्या हुआ, BD अपॉन OC। देन OC की वैल्यू क्या है, T, और BD की वैल्यू क्या है, V माइनस U। आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, ये स्टेप को आप ओमिट भी कर सकते हैं। क्लियर, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, A इक्वल्स टू BD अपॉन T। तो T को यहां ले गए तो AT हो गया। अब BD की जगह पे आप क्या पुट कर सकते हो, V माइनस U। BD की वैल्यू क्या है, V माइनस U। तो आप V माइनस U में से U को उस साइड ले जाओ, तो क्या होगा, U प्लस AT, V इधर रह गया। आगे आपका फॉर्मूला V इक्वल्स टू U प्लस AT। तो ये आपका पहला इक्वेशन है मोशन का, आपको इस तरह से पूरा प्रॉपरली लिखना है। ओके, और इसके न्यूमेरिकल्स हम हमारे अगले लेक्चर में देखेंगे। अब बढ़ते सेकंड हमारे इक्वेशन की तरफ। तो सेकंड इक्वेशन है हमारा इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन। ओके, दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन, इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन। ओके, तो ग्राफ तो आपको समझ में आ गया है। ओके, तो ग्राफ सेम ही रहेगा। अब यहाँ पे पोजीशन और टाइम के बीच में रिलेशन बताना है। फॉर्मूला हमारा है S इक्वल्स टू UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ओके, ये हमारा फॉर्मूला है, S इक्वल्स टू UT प्लस 1/2। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, S मैंने आपको ग्राफिकल जब समझा रहा था, मैंने आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट है S क्या होगा, एरिया अंडर द ग्राफ। ओके, S क्या होगा आपका, एरिया अंडर द ग्राफ। तो एरिया अंडर द ग्राफ क्या है, एक ट्रायंगल है और एक रेक्टेंगल है, आप देख सकते हो, राइट। सो हमने पहले यहाँ पे सेम एजम्पशन लिखा है, जो पहले ही क्वेश्चन में था वैसा ही सेम एजम्पशन यहाँ पे लिखा है। ओके, एजम्पशन सेम रहेगा। फिर आपको ये सब लिखना है, आपको स्टेटमेंट, लेट कंसीडर ऑब्जेक्ट हैज ट्रैवल्ड अ डिस्टेंस s, एक ऑब्जेक्ट ने हैज ट्रैवल किया डिस्टेंस इन टाइम t अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म था। ओके, द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय द एरिया एनक्लोज्ड विद इन OABC। मतलब एरिया अंडर द ग्राफ जो है उससे आपको क्या मिलेगा, इसका कितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने कवर किया। सो S इक्वल्स टू एरिया OABC क्या है, पूरा का पूरा एक ट्रेपीजियम है, दो पार्ट में बांट देंगे, एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल में। तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होगा, L इंटू बी, और यहाँ पे क्या होगा, आपका ट्रायंगल का फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट। चलिए ग्राफ देखते हैं, समझते हैं कैसे उन्होंने लिया। तो आप देख सकते हैं OA इंटू OC क्या है, रेक्टेंगल OA इंटू OC, लेंथ इंटू ब्रेथ। सेम ट्रायंगल AD इंटू BD। क्लियर, अब हमारे पास सारे वैल्यूज हैं, हमने यहाँ स्टेटमेंट में एजम्पशन कर रखा है। OA क्या है हमारा, देखो OA हमारा क्या है, U, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, U। OC क्या है हमारे पास, OC इज टाइम, तो T आ जाएगा इसकी जगह पे। AD क्या है हमारा, देखो यहाँ पे AD का हमने एजम्पशन किया, AD क्या है हमारा T, तो यहाँ पे T आ गया। ओके, उसके जगह पे, फाइन, क्लियर। और BD हमारा क्या है, BD इज व्हाट, BD इज हमारा AT। हमने पहले इक्वेशन में BD को क्या किया था, BD को क्या माना था पहले इक्वेशन में, AT, तो वहां से क्या आ गया, AT। क्लियर, फिर से देखो OA क्या है, U, OC क्या है, T प्लस 1/2, AD क्या है, T, और BD हमारा क्या है, AT। हमारे पहले इक्वेशन से हमने ले लिया, तो हम इस पास इसको रीअरेंज कर देते हैं, तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा S इक्वल्स टू UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। क्लियर, अंडरस्टूड। कुछ नहीं करना है आपको, ये सेम फॉर्मूला वैल्यू पुट करना है, आपने जो assumption किया उसको यहाँ पे पुट कर देना है। OA को हमने U माना, OC को हमने क्या माना है, T माना है 1/2, AD भी क्या है T, BD क्या है हमारा AT, पुट किया, रीअरेंज किया, हमारा इक्वेशन आ गया। दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, नाउ द थर्ड इक्वेशन।
थर्ड इक्वेशन में भी सेम ग्राफ है, इसको हम इस ग्राफ को कहते हैं हम इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। दिस ग्राफ इज नोन एज इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। ओके, तो ये किसके बीच में रिलेशन हमको बताना है, यहाँ पे पोजीशन एंड वेलोसिटी, यहाँ पे हमको किसके बीच में बनाना है, पोजीशन एंड वेलोसिटी के बीच में हमको रिलेशन बताना है। ये हमारा जो इक्वेशन है 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो स्टार्ट करते हैं, यहां भी पोजीशन की बात करनी है, मतलब एरिया अंडर द ग्राफ हमको लेना है। ओके, यहाँ पे भी हमको एरिया अंडर द ग्राफ लेना है। बस हम यहाँ पे एक थोड़ा सा डिफरेंस क्या करेंगे, हम यहाँ पे कंबाइंड ट्रेपीजियम का एरिया लगा देते हैं। ठीक है, सेम चीज हमने लिखी है, हमने एरिया ऑफ ट्रेपीजियम डायरेक्ट निकाल दिया। इसमें हम ट्रायंगल और रेक्टेंगल अलग अलग नहीं करेंगे, हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया ट्रेपीजियम का। ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 टू पैरेलल साइड, सम ऑफ टू पैरेलल साइड इनटू द हाइट। ओके, 1/2 b1 प्लस b2 इंटू h। ओके, सो ये आपका b1 b2 इंटू h हुआ और ये 1/2 आ गया। तो देख लेते हैं, चलो किसी को ना समझ आए तो ग्राफ में हम देखते हैं। तो हमारे पास ये एक पूरा ट्रेपीजियम है, तो बेस 1 क्या होगा, टू पैरेलल साइड, ये होगा और एक पूरा ये होगा। तो AO और BC हमारा टू पैरेलल साइड्स हो गया। हाइट हमारा क्या होगा, OC होगा, राइट। तो ये है हमारे पास। अब हमारे पास सबकी वैल्यू है, हमारे पास OA क्या है, BC क्या है, OC क्या है, सब हमारे पास है ही। तो हम देख लेते हैं फटाफट। OA हमारा क्या है, U, तो उसकी जगह पर हमने U पुट कर दिया। BC हमारा क्या है, V पुट कर दिया। एंड हमारे पास OC क्या है, T, टाइम पुट कर दिया अपॉन 2। क्लियर। अब हमको देखो यहाँ पे टाइम की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमारा इक्वेशन क्या है, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। तो हम टाइम को रिप्लेस कर देंगे। कैसे रिप्लेस करेंगे, देखो हमने पहले एक फॉर्मूला पढ़ा था, हमने पहले एक इक्वेशन पढ़ा था। ओके, हमारा एक्सेलरेशन का इक्वेशन वेरी वेल नोन, a इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी, राइट। तो मैं t को इधर ले आता हूं, a को नीचे ले आता हूं, तो क्या हो जाएगा, t इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन a, t इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन a हो जाएगा। तो मैं t की वैल्यू को यहां पर रिप्लेस कर सकता हूं। क्लियर। तो मैं यही करूंगा कि मैं t के बदले क्या पुट कर दूंगा, v माइनस यू अपॉन a इस इक्वेशन में 8.11 में। ओके, आप ये तो एक्चुअली टेक्स्ट बुक के रेफरेंस में दिया गया, आप इसको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 ले सकते हैं। ओके, सो t की जगह पर हमने क्या पुट कर दिया, v माइनस यू अपॉन a। तो नीचे यहाँ पे 2 था, ओके, यहाँ पे 2 था, तो 2 इंटू a 2a हो गया, और ऊपर t की जगह पे v माइनस यू आ गया। क्लियर। अब देखो ये एक आइडेंटिटी है, a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ओके, और ये 2a इस साइड चला जाएगा, तो क्या हो गया, 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यही आपका इक्वेशन है, 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ओके, सो दिस इज द इक्वेशन। क्लियर, फाइन। अब हमारे ये इक्वेशन आई थिंक आपको समझ में आया हो। अगर कोई फिर भी डाउट हो, फिर भी आप कमेंट में आप मुझे डाउट लिख सकते हैं, तो मैं आपको इसके डाउट्स क्लियर करूंगा। बट मैं आपको फिर भी बताता हूं, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ग्राफ स्टडी कर लो, और जब आप इस तरह से इक्वेशन को सेटअप कर ले, तो उसके बाद आपको सिर्फ वैल्यू ही पुट करना है, ज्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है। ओके, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में आता है 3 to 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन इस पे आता है, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका न्यूमेरिकल। ओके, नाउ अब इसके बाद हमारे पास एक जो टॉपिक है वो है मोशन का, उसमें पाथ चेंज होता है, सर्कुलर मोशन। एक छोटा सा टॉपिक है, इसके न्यूमेरिकल से पहले, न्यूमेरिकल हम सबसे लास्ट में करेंगे। ओके, तो हम वो टॉपिक ले लेते हैं जो हमारा टॉपिक है सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन क्या होता है, व्हेन द मोशन इज इन अ सर्कुलर पाथ देन वी कॉल इट एज अ सर्कुलर मोशन। ओके, जब कोई भी मोशन सर्कुलर पाथ में हो, ओके, अ बॉडी इज सेड टू बी इन सर्कुलर मोशन व्हेन इट रोटेट्स अबाउट अ फिक्स पॉइंट। कभी बॉडी एक फिक्स पॉइंट के अराउंड रोटेट करती है, तो हम उसको क्या कहते हैं, मोशन इज इन अ सर्कुलर पाथ। तो अब नॉर्मली एग्जांपल समझो कि मैं ऐसा बोलता हूं कि ये मेरा फिगर है, ये मेरा पाथ है, ये मेरा ट्रैवलिंग का पाथ है। ओके, तो मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। ओके, ऐसे तो अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा है टेंजेंट के बारे में। आपको पता है सर्कुलर पार्ट में आप जब एक पॉइंट पे खड़े होते हैं, तो आपका डायरेक्शन क्या होता है, टेंजेंशियल होता है। टेंजेंट क्या है, एक ऐसा लाइन जो सर्कल को एक्सटर्नली एक ही पॉइंट पे टच करता है। मतलब मेरा इस पॉइंट पे जो मेरा डायरेक्शन होगा वो टेंजेंट के पॉइंट पे होगा। मतलब सर्कुलर फिगर में आपका हर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होता है, चेंज होता है। द डायरेक्शन विल चेंज एट एवरी पॉइंट इन अ सर्कुलर पाथ। क्लियर। सो ये हमारा है। अब मुझे कोई बोले कि सर्कुलर पाथ में तुम मुझे स्पीड निकाल के बताओ, तो हमें स्पीड निकालने की आदत तो है, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो विद डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको जब हम डिस्प्लेसमेंट कर रहे थे तो आपको डिस्टेंस बताया था, क्या होता है, ये सर्कमफ्रेंस जो होगा उसका डिस्टेंस होगा। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। तो डिस्टेंस आपका 2 पाई आर हो गया अपॉन टाइम।
क्लियर? सो अगर आपको सर्कुलर फिगर में वेलोसिटी निकालनी हो तो 2 पाई r अपॉन t, ये आपका फॉर्मूला है टू फाइंड द वेलोसिटी इन अ सर्कुलर पार्ट। क्लियर? सो इसके भी न्यूमेरिकल्स हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। क्लियर? सो इस यहां पर हमारा जो है थ्योरेटिकल पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना न्यूमेरिकल करेंगे तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन के और ये सर्कुलर पार्ट का। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।